Okay, welcome. This is mapping lecture series, especially for India right now. These are the set of topics that I am focusing on priority basis. And right now we are focusing on this part, especially for mapping. We'll cover other aspects as well, like this is also part of mapping actually, but I studied it separately. So these aspects and slightly a little bit more aspects, which I will come in my notes accordingly. We'll have a brief overview of that. The idea of this is to have a revision and have a structured revision of my own notes so that it takes least amount of time and effort to revise them and set the ball rolling in the case of revision of this aspect so that the second revision, second iteration would be a much less effort taking and it would be much more productive to revise my notes for mapping that way. So, having that said, let's move on without any further ado. Let's do that. These are some of the notes that I have made over the years of my preparation for mapping. There are multiple notes, although, but we'll be jumping to them again and again. But we have to start somewhere, so why not here? Okay. We had a topic of ports. So we'll start with ports right now. So India has 13 major ports, right? We had 12 major ports earlier, but another major port was inaugurated in Kerala, and its name was. Okay, so there are 13 major ports, or Vizhinjam, although it is a major port, is probably not yet counted in major list of major ports. So we'll study it separately, no problem. And this list is not good at all. Let me switch it to the better one. Mm, mm. Okay, so 13 major ports. Let's start. First topic of the day. अ, गुजरात में देखो है मुंद्रा, कांडला, जामनगर। मुंबई में है। महाराष्ट्र के अंदर तो है ही मुंबई। फिर एक मुंबई का नाम है JNPT एज वेल, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। गोवा, मोरमुगांव भी बोलते हैं इसको। फिर मैंगलोर, कोचिन इज इन केरला, विजिंजम लेटेस्ट है केरला के अंदर। अच्छा, महाराष्ट्र के अंदर है एक वाधवन पोर्ट एज वेल। ये महाराष्ट्र के अंदर ही है या फिर गुजरात के अंदर? हैव टू कंफर्म दैट। विजिंजम फाइन। See, Vadhavan port is in Maharashtra, said to be the 13th major port in India. So we don't have it written here yet. Problem, I'll just write it in red pen itself. Vadhavan port, it is in Maharashtra. Fine. तो ये नहीं भूलना है। देन वी हैव विजिंजम, ये रिसेंटली इनॉग्रेट किया था पीएम ने। काफी समय से बन रहा है ये, मतलब 10-15 सालों से बन रहा है। एंड रिसेंटली इट वाज फाइनली इनॉग्रेटेड इन 2025 itself. Then we have Tuticorin और चेन्नई, ये तो ऑब्वियसली दीज आर इन तमिलनाडु। बोथ Tuticorin भी याद रखना है और चेन्नई भी याद रखना है। विशाखापट्टनम फेमस विशाखापट्टनम के कारण है। Then we have कोलकाता एंड हल्दिया। दिस वन इज आई गेस रॉन्ग, ये उड़ीसा का है। उड़ीसा का है ये पोर्ट, पारादीप। दिस इज पारादीप पोर्ट। लेट मी चेक इट इन अनदर इमेज। रबिश इमेज। In this image we can see it in a better manner.
I'll just switch that image. We don't want any factual mistakes. See, यहाँ पे है कांडला, यहाँ पे है मुंबई, ये जेएनपीटी। जेएनपीटी और मुंबई एक्चुअली अलग पोर्ट्स हैं, तो ये ध्यान रखना है। देन न्यू पोर्ट दैट वी हैव हियर इज वधवन। वधवन याद रखना, ये महाराष्ट्र में है। देन जैसे मैंने कहा था मोरमुगांव है। देन वी हैव मैंगलोर। मैंगलोर पता है अपन को, बैंगलोर के पास में ही जहाँ पे बैंगलोर है देश में, वहीं पे मैंगलोर भी है। तो मैंगलोर, मोरमुगांव। मोरमुगांव इज गोवा। कोची, कोची इज इन केरला। केरला में जो न्यूली इनॉग्रेटेड पोर्ट है अपना, उसका नाम है विजिंजम। देन वी हैव तमिलनाडु में तुतीकोरिन, एक चेन्नई। तुतीकोरिन और चेन्नई। देन वी हैव इन्नोर, ये जो कामराजार पोर्ट है। So this is important. We have three ports in तमिलनाडु, और ये मोस्ट नंबर ऑफ पोर्ट्स है अभी तक एक स्टेट के अंदर, मेजर पोर्ट्स इन वन स्टेट। विशाखापट्टनम इन आंध्र, पारादीप इन उड़ीसा, एंड हल्दिया या फिर कोलकाता इन वेस्ट बंगाल। तो दैट इज द मेजर पोर्ट्स। इतना ही चाहिए अभी के टाइम पे। वी हैव मोर देन 200 माइनर पोर्ट्स। अच्छा, अभी रिसेंटली इंडिया की कोस्ट लाइन को रिवाइज किया गया है, उसकी लेंथ को। So our coastline has become more than 11,000 kilometers long. पहले 7,500 kilometers की coastline थी. Now it is more than 11,000 kilometers. Maharashtra has the highest number of ports, like total number of ports, not just major. Then we have ये number of ports के terms में महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर तमिलनाडु. Also, western coast जो है, there are natural ports here because our western coast is broken coast, or it is a submergent coast. तो इस कारण से there are natural harbors and ports over here, and that is why in general there are a lot number of ports on the western coast of India, say Maharashtra and Gujarat. And इसमें ये चीज ध्यान रखनी है, ऑल्दो गुजरात का कोस्ट लाइन लगता है कि बहुत लंबा हो, और होपफुली होगा भी, but Maharashtra has more number of ports, so that goes there. Then anything else that we need? JNPT is the largest container port, then largest privately owned port is Mundra Port. Mundra Port is which one? One is Mundra Port. Mundra, Kutch district is India's largest privately commercially owned. So this is not a major port because it is obviously a privately owned port. Privately owned ports are not major ports. Common sense, right? So this is not a major port, right? तो मुंदारा पोर्ट। देन कामराजार पोर्ट, ये कामराजार पोर्ट वही एन्नौर पोर्ट है, जो तमिलनाडु में है। इज द फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया टू बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया टू बी रजिस्टर्ड एज अ पोर्ट। देन हाँ, ये कुछ कुछ ट्रिक्स टाइप है कि पटना में है तो आंध्र प्रदेश में ही होगा। वी हैव मसूलीपट्टनम इन आंध्र प्रदेश, एंड वी हैव विशाखापट्टनम, और भी कुछ कुछ पट्टनम है आंध्र प्रदेश में। ये लोकेशन की ट्रिक्स हैं। 13th major port is Port Blair. So somewhere it is written Port Blair, somewhere it is written Vadhavan, somewhere it is written what is the latest port in Kerala? That is Vizhinjam. Somewhere it is written Vizhinjam. So that concludes our ports. कुछ देखा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी is the largest riverine port of India. So this is in the sense that जो
ये मान लो वो है हुगली रिवर है। तो हुगली इज वेरी थिक, the ships directly come inside Hooghly River, and there is a natural harbor kind of structure formed there inside the river itself. So that is a riverine port. It is the largest riverine port in India. मूविंग ऑन, ये हाईवेज वगैरह बाद में देखेंगे, बट एक बार ये देख लेते हैं ब्रॉड लोकेशंस ऑफ मेजर सिटीज इन इंडिया। तो श्रीनगर ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर में है, जो ईटानगर, ओके, yeah, capitals are very important actually. Well, let's briefly memorize them. So this is Assam. फिर असम के ऊपर यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे है मेघालय, यहाँ पे है नागालैंड, यहाँ पे है असम के साथ, व्हाट्स द करेक्ट असम। असम की लोकेशन, असम की शेप कुछ ऐसे है, राइट, सही बना। देन ये मानो कि ये मेघालय है, इसके ऊपर से ये ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है नागालैंड पूरा ही, और ये है मणिपुर, ये है ऐसे मिजोरम, फिर ये है, ये है our name त्रिपुरा। तो ठीक है, ये तो असम है, we all know। ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है नागालैंड, ये है मणिपुर, मणिपुर, and दिसपुर, इसकी कैपिटल है ईसा। देन नागालैंड की कैपिटल है उत्तरकाल, मिजोरम कैपिटल त्रिपुरा, कैपिटल है अगरतला। Yeah, Guwahati is not really Silchar is not as a Guwahati, Guwahati भी असम, पूरी, ठीक है, देख लेना, कितने लोकेशन पता होनी चाहिए बड़ा। तिरुपति, या तिरुपति जो आंध्रा में, ये इंटरव्यू में पढ़ी थी। पुडुचेरी, स्टेट, नागापट्टिनम, पुरी, कन्याकुमारी, एंड कोच्चि, चेरतरई, ठीक है। Now come to the point, coming to the major portion जो काफी commonly एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, that is mountain ranges and peaks in India। सबसे पहले तो माउंटेन रेंजेस देख लेते हैं, तो ये ओवरव्यू देखो। देखो यार, सबसे ऊपर तो हिमालय, हिमालय हमने पढ़ा।
Well, the Himalayas is not a continuous range. तो है कि तीन पैरेलल रेंजेस हैं और वेस्टर्न वाले को वेस्टर्न हिमालय वगैरह बोलते हैं, ईस्टर्न वाले को पूर्वांचल बोलते हैं। अच्छा, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में भी यूज होता है एक टर्म, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के रीजन को पूर्वांचल बोलते हैं, ठीक है। पूर्वांचल से यहाँ तक जाते हैं और हिमालयाज की शेप जो है वो ऐसी है, ये टाइप से है। So this bend in the mountain range is called as syntaxial bending. Not very important. It's kind of objective exams. यूपीएससी वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज इम्पोर्टेंट। तो इम्पोर्टेंट लोकेशंस वगैरह देखना शुरू करते हैं। देयर इज नामचा बरवा है, ये इंडिया में नहीं आता है, तिब्बत के अंदर आता है। ये इधर का ईस्टर्न साइड का सिंटैक्सियल बेल्ट नामचा बरवा पे है और इधर है नंदा देवी, सॉरी नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। अब जो हिमालय के एक्सटेंट है वो जनरली नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक डिक्लेयर किया जाता है, ऑल्दो इट इज मच मोर, इट कुड बी मच मोर देन दैट, ठीक है। इधर देखते हैं ये वाला पोर्शन, तो इसको बोलते हैं पमीर नॉट। नॉट इज अ पोर्शन वेयर मल्टीपल mountain ranges come and merge together. This is Pamir Knot. It's a highland kind of thing or multiple. This is in Afghanistan. ठीक है, तो कुछ माउंटेन रेंजेस आर आल्सो देयर इन अफगानिस्तान। उस माउंटेन कौन भी बोलते हैं, और तो ये चाइना में जाती है के अंदर, यही इसके ऊपर एम चार। फिर ये कैलाश रेंज है, इधर पार्ट है। तो ऑल्दो हिमालयास हैव ओनली थ्री रेंजेस, इसके बियॉन्ड जो हिमालय, एट हिमालयास के बियॉन्ड जो भी रेंजेस आती हैं वो हिमालय पार की रेंजेस। इसमें मेजर यही है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। दीज आर द मोर मेजर हिमालयस। कुछ बहुत और भी हैं, बट ठीक है, पहले पीक्स देखते थे रेंजेस करके, नॉर्थ के फिल्म देखी तो इसकी यहाँ भी पीक में कंचनजंगा है। ये अपन की हाईएस्ट पीक है इन इंडिया, इंडियन टेरिटरी जो अभी अपन बोल रहे हैं हिस्ट्री के लिए। वेट अ सेकेंड, नहीं हाँ, पीक हाँ यही है, P2 है। P2 is Mount Godwin Austen, but this is in UK. This it is currently in UK। तो अपन की करंट जो सबसे लोकेशन सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, इंदिरा कॉल कहलाता है। और सदर्न मोस्ट पॉइंट है जो डूब चुका है वो यहाँ पे है और इसका नाम है इंदिरा पॉइंट ही है उसका पॉइंट। ठीक है, वेस्टर्न तो ये गुजरात के इस पे टिप पे आता है, रण ऑफ कच्छ में कहीं पे होगा। और ईस्टर्न मोस्ट ये अरुणाचल प्रदेश में है, देयर इज अ विलेज। ईस्टर्न मोस्ट ऑफ इंडिया, किबीतू, किबीतू। The easternmost point of India is Kibitu village. तो अपने सर बता रहे थे कि लोग यहाँ पे भी अब टूरिज्म के तौर पे जाने लगे हैं, बिकॉज फॉर वेरी अर्ली सनराइज। देन Kibitu to be westernmost point of India is गुहार मोती, गुहार मोता, गुहार मोती में लिख लेते इशू चल रहा है। वो है सर क्रीक का, राइट। तो सर क्रीक पे इशू चल रहा है पाकिस्तान के साथ, लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट, लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट। और
राइट। बाकी देखते हैं पीक जल्दी जल्दी से। देयर इज दिस पीक जिसके बारे में मेरे को कुछ ज़्यादा पता नहीं था, मैंने ध्यान नहीं दिया था ज़्यादा। ये है माउंट सारावती। इट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट। माउंट सारावती। ठीक है, ईस्टर्न इसमें है। कौन से स्टेट के अंदर आता है ये? मिजोरम के अंदर आता होगा। नहीं, मणिपुर के अंदर आता होगा। सारावती। बॉर्डर ऑफ नागालैंड इंडिया। So it is in Nagaland, not even in Mizoram, not even in Manipur. Mount Saramati is in Nagaland. This is important. फिर हाँ, ये है फंगफुई। फंगफुई। ये है ब्लू माउंटेन, तो ये मिजोरम में है प्योरली। ये तो हमें पता है। देन वी हैव ऊपर यहाँ पे जब जाते हैं तो यहाँ पे है टाइगर हिल्स। टाइगर हिल्स एंड सांधो। तो ये दोनों हैं हमारे इसके अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर। बट अगेन ये वाली मैंने कभी पढ़ी नहीं है टाइगर हिल्स, और ना ही कभी पूछी गई है सांधो और टाइगर हिल्स। फिर आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु शिखर। गुरु शिखर के अंदर है हिल स्टेशन माउंट आबू। ठीक है। फिर है धूपगढ़ और अमरकंटक। अमरकंटक एंड धूपगढ़। तो अमरकंटक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्या, विंध्य रेंज का हाईएस्ट पीक है अमरकंटक। धूपगढ़ जो है ये मैकाला रेंज का धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा, located in the Mahadev Hills near Pachmari. ठीक है, धूपगढ़ इज द विंध्यन सतपुरा। Okay, so Amarkantak, this is we learn so much after a gap of time. So ये है अमरकंटक मैकाला रेंज का, और धूपगढ़ है सतपुरा रेंज का। ठीक है, धूपगढ़ मैकाला रेंज में है, और धूपगढ़ सतपुरा रेंज में है, और ये अमरकंटक मैकाला रेंज में है। और ये है ईस्टर्न ईस्टर्न घाट्स की टॉलेस्ट पीक, जिंदगढ़ा। ईस्टर्न घाट्स की टॉलेस्ट पीक है जिंदगढ़ा, ये ओडिशा के अंदर है। ठीक है। और फाइन, इधर की तो अपन को पता है, एक ये अनीमुड़ी है, अनीमुड़ी। और एक है ये अनाईमुड़ी इज इन तमिलनाडु। ओके, कैन वी नो दैट। देन वी हैव नीलगिरी। नीलगिरी इज इन कर्नाटका। नीलगिरी के अंदर है सत्यमंगलम नेशनल पार्क। ठीक है, नीलगिरी, रेवाड़ी, शेवरॉय। ये है गिरनार। हम्म। सो इधर की जो ये रेंजेस हैं, इनको मैंने ऑर्डर में बात करने के लिए ये एक्रोनिम बनाया था। नल्लमाला, नल्लमलाई, नल्लमलाई, रेवाड़ी, शेबरॉय एंड नल्लमलाई, पालकोंडा, जेवाड़ी। नल्लमलाई, पालकोंडा, जेवाड़ी, शेवरॉय, ऐसे थी है। ऑल्दो ये ऐसे बिल्कुल वर्टिकल ऑर्डर में नहीं है, बट ऐसे है। तो ये नल्लमलई है, पालकोंडा है, ये जेवाड़ी है, और ये है शेवरॉय।
सो ये हो गया। बाकी एरामल्ला नल्लामल्ला ये सब देख लेना है, और ज़्यादा वो नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक पीक है, कार्डेमम हिल्स है यहाँ एक, पीक नहीं है। कार्डेमम हिल्स बिल्कुल सदर्न मोस्ट इस पे, जहाँ पे अपना जो है इसका कन्या कुमारी, तो उसी पे ही है कार्डेमम हिल्स, लगा के खत्म होती है। देन वन मेजर पीक हमने देख ली है। दोज आर द मेजर पीक्स। ये केटू याद रखना है। माउंट केटू इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन इंडिया। और जो माउंट ये है ना, ये हाँ ये है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इज ऑन द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड चाइना। तो ये ग्रेट हिमालयाज है, तो ग्रेट हिमालयाज और ऑन द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड चाइना। इधर इंडिया और इसके मतलब उत्तराखंड और जो तिब्बत के बॉर्डर के ऊपर चलता है। जो अपर बॉर्डर है ना, ये वाला, तो दिस इज द ग्रेट हिमालय वाला एक्सटेंट। यहाँ पे हाँ ये याद रख सकते हैं, इनको बोलते हैं दमाम हिल्स। इसका है दाखला मेरी अबोर और विशिनी। इसमें याद रखना है कि ये ऊपर की तरफ जाती है, अक्सर ऐसे कंफ्यूजन होते हैं कि ऐसे आती होंगी। नहीं, ये ऊपर की तरफ जाती है, दाखला मेरी अबोर और विशिनी। राइट, और यहाँ पे है ये मिकिर हिल्स है। मिकिर हिल्स क्यों इंटरेस्टिंग है? बिकॉज मिकिर हिल्स इज अ रेडियल ड्रेनेज पैटर्न सिस्टम, राइट, रिवर सिस्टम। तो इसमें essentially क्या होता है, देर इज अ रिवर विच इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम a mountain. So what happens in this case is, so maybe there is a water body or some source of water. उस कारण से river flows in all direction. There are multiple rivers flowing and they don't merge with each other. So they flow on their longer way. इस कारण से एक पॉइंट से मल्टीपल रिवर्स ओरिजिनेट इन डिफरेंट, और इसी चीज को बोला जाता है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। तो इसकी ऑल्दो काफी सारी लोकेशंस हैं इंडिया में, दैट इज नॉट वेरी यूनिक। बट जो मेजर लोकेशंस आती हैं, तो एक मिकिर है, एक यहाँ पे अमरकंटक है, और एक है यहाँ पे गिरनार। गिरनार ये वाली गिर रेंज। फाइन, देखते हैं। ये है गारो खासी जयंतिया। ये तीन हिल रेंजेस हैं हमारी मेघालय के अंदर, और ये तीनों वहाँ की ट्राइब्स के नाम के ऊपर इन नाम है, गारो खासी और जयंती। तो और यहाँ पे देखो ये पटकाई बूम है, ये हमारी नागालैंड और मणिपुर के अंदर है। तो ये बराइल रेंज है, मिजोरम के अंदर है। माउंट सरामती, माउंट सरामती हमने देखा था कि ये नागालैंड का। तो ये जो योमा, योमा करके जो नाम है ना, ये सारे होते हैं बर्मा के। बर्मा की रेंजेस, बर्मा या म्यांमार होते हैं। म्यांमार की जो रेंजेस हैं उनके नाम भी ऐसे होते हैं, अराकन योमा, देन पेगु योमा, पेगु योमा, तो ऐसे नाम होते हैं। नाउ ये अराकन योमा और पेगु योमा क्यों इम्पोर्टेंट है? दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर इंडियन मानसून। मानसून की जब साउथ वेस्टर्न मानसून आता है, तो वो सबसे पहले म्यांमार में टकराता है। वे फास्ट होती हैं बे ऑफ बंगाल में, और वो जाती है सीधा म्यांमार के हिल्स से टकराती है, रेंजेस से अराकन योमा, पेगु योमा, और वो डिप्लीट हो जाते हैं वेस्ट की तरफ। और यहाँ पे भी जो है ये लो लैंड्स है, यहाँ से भी टनलिंग होती है, तो वहाँ पे वैसे चली जाती है। तो दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट, ये रिफ्लेक्ट करता है मानसून को इंडिया की तरफ। और इससे फिर जो प्लेन्स हैं इनमें काफी हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है हमें, कि एक तो ब्रांच मानसून की ऐसे जाती है और एक ब्रांच यहाँ से ऐसे आ रही होती है। तो ये यहाँ पे आगरा के पास दे मीट टुगेदर, एंड देयर वी गेट गुड रेनफॉल, good amount of rainfall, a good period of time as well. Then some other ranges, some other names that we need to keep in mind. देखिए ये बाबा बुडान हिल्स, ये वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है। बाबा बुडान वाज अ यूनिक पर्सन, कर्नाटका, कर्नाटका के हिस्ट्री में।
नाउ ही वेंट टू यमन, और यमन में से वो कॉफी के कुछ बीन्स ले आए, और कॉफी के बीज लाके यहाँ पे इन हिल्स में जाके डाल दिया, उसे बिखरा दिया, और उससे कॉफी उग गई, वहाँ पे कॉफी के पेड़ उगने लगे, और उससे लोग खुश हो गए उसे पी पी के। तो बस उतनी तभी से इनका नाम चर्चित हो गया, बाबा बुडान, बाबा बुडान। तो बाबा बुडान हिल्स ही हो गया है उनका। देन वी हैव कच्छ वगैरह, ये कैमूर है। अच्छा, यहाँ पे होता है विंध्या, नर्मदा, सतपुरा, तापी। ये इसका ऑर्डर याद रखने के लिए, विंध्या तो हिल रेंजेस है, नर्मदा रिवर है, रिवर वेस्ट फ्लोइंग है। ऐसे ही सतपुरा तो हिल रेंजेस है, फिर उसके बाद तापी एक और वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो ये है यहाँ का सिस्टम। ठीक है, ये कच्छ है, ये सतमाला है, असुर है, पूरा देख लिया अपन ने। ये महाराष्ट्र की, अब देख लेते हैं कुछ कुछ रेंज। ये अजंता रेंज है, इसी में ही है अजंता और अलोरा की गुफाएं। जब हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पढ़ेंगे कल्चरल, तो उस समय हम देखेंगे अजंता एंड एलोरा केव, विच आर देयर इन अजंता की रेंज के अंदर ही। बाघोरा रिवर यहाँ से पास होती है, उसके पास से। फिर ये निर्मल रेंज है, बालाघाट है, हरिश्चंद्र है, ये चांदोर वांदोर तो इम्पोर्टेंट। ये याद रखना है, जैसे कार्डेमम है, पालनी तो ठीक है, अन्नामुडई, अनैमुडई और अनैमलई। अनैमलई रेंज है, ये ध्यान रखना हमारी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अनैमलई रेंज, पालकोंडा रेंज। इम्पोर्टेंट पासेस देख लेते हैं। पासेस इन इंडिया, साउथ से शुरू कर रहे हैं, पालघाट। पालघाट को बोलते हैं, एक और नाम जो है इसका पलक्कड़, पलक्कड़ गया। तो ये जो कंटिन्यूअस हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, उसके बीच में एक गैप आ जाता है यहाँ। तो दैट इज व्हाई देयर इज दिस पलक्कड़ या पालघाट गैप। देन वी हैव बोरघाट और थालघाट। इनकी चर्चा कम होती है, बट हमें पढ़नी चाहिए ना, याद करने की कोशिश करनी है। बोरघाट, देन वो आते हैं अपने प्रॉपर पासेस के ऊपर। एक एक यहाँ पे भी है, हाँ। वो यहाँ नहीं है, आई गेस। यहाँ पे, वो यहाँ पे होता है, यहाँ से लेके जो यहाँ का गैप है, इसको बोलते हैं राजमहल। का नाम क्या है?